what is pharmacology, what is pharmacy, and the term it appears in that chapter. I think pharmacokinetic means and pharmacodynamic. Firstly, pharmacokinetic is what the body does to the drug. Body does ड्रग को क्या कर रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक. फार्माकोकाइनेटिक में हम what we study about the ADME of the drug. ADME stands for absorption, distribution, metabolism, and excretion. Absorption means the movement of drug from the site of administration to the bloodstream. Simply बोलूं तो जो ड्रग है हम जिस रूट से ले रहे हैं, like we take a drug from IV route, there is no first pass metabolism in IV route because the drug directly comes into blood circulation without passing through liver or kidneys. ठीक है. सेकेंड इसमें बोला है कि it involves movement of drug from the site of administration to the bloodstream. There are two routes available that involved in absorption. First one is your oral, that is commonly used for drug administration. Second one is your IV. IV is used for specific drugs like irritant drugs that irritate our GIT tract. Those drugs are taken by IV route. It involves two mechanisms. It involves following mechanisms. Two नहीं बोल सकते ज़्यादा होते हैं. First is your membrane transport system. इसको बोलते हैं, ठीक है. इसमें होता है ट्रांससेलुलर एंड सेकंड वन इज योर पैरासेलुलर एंड थर्ड वन इज योर वेस्कुलर. बेसिकली ट्रांसपोर्ट is a movement of drug from the site of administration through the blood stream to the site of action. ड्रग जो होती है वो ब्लड स्ट्रीम से सीधा मूव करती है टू द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम that are involved in drug absorption. First one is your transcellular or intracellular. Intracellular means through the cell. Okay. Paracellular means intracellular, between the two epithelial cells, like this. I show you. Like this. This is transcellular process. Means through the cell. Paracellular means the junction present between the two adjacent cells. This is paracellular. Okay. Then third one is your vascular transport. Vascular transport means the transport of drug or any substance within the cell membrane or cell. Then first one is your transcellular. Transcellular basically the passes of the drug through the GI epithelium. This is GI epithelium ball. Basically the ball consists of villi and microvilli. Microvilli are present outside the membrane that increases the area of absorption. जी क्या करेंगे, जो ड्रग ले रहे हो उसको अब्जॉर्प्शन उसकी क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है. दीज आर एंटीरोसाइट्स. एंटीरोसाइट्स क्या करेंगे, एंटीरोसाइट्स पासेस द ड्रग फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट टू द इंटीरियर ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन लाइक, ठीक है. देन दिस इज क्रिप्ट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिप्ट? क्रिप्ट क्या करेगा, व्हेन देयर इज ए डिजेनरेशन इन योर जीआई एपिथेलियम वॉल, the crypt cells regenerate those epithelium wall, ठीक है. Transcellular involves three steps. First one is your permeation through GI epithelium cell wall, permeation through this wall. Second one is your movement across cytosol. Cytosol is a liquid present between the cell, present in the cell. सेल के बीच में जो प्रेजेंट होता है ना, जिसमें ऑल द ऑर्गेनेलीज और एज यू से ऑर्गन्स ऑफ सेल प्रेजेंट, दैट इज साइटोसोल. थर्ड इज योर परमिएशन ऑफ लेटरल और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन. परमिएशन ऑफ लेटरल एंड बेसोलेटरल मेम्ब्रेन लाइक दिस. दिस इज बेसोलेटरल मेम्ब्रेन.
where a cytosol is present and all organelles of a cell are present. ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट, इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं ट्रांससेलुलर में? फर्स्ट है पैसिव, सेकंड है एक्टिव. पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस आर एनर्जी इंडिपेंडेंट. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू ट्रांसफर द ड्रग फ्रॉम द internal organs from the site of administration. Okay, it involves passive diffusion or simple diffusion. Second one is your pore transport. Third one is your ion pair transport, and fourth one is your facilitated diffusion, or simply as you say filtration process. And second one is your active transport processes. These processes are energy dependent, and there are two types. First one is your primary active transport, and second one is your secondary active transport. Secondary active transport is further subdivided into two groups. First one is your symport, and second one is your antiport. Symport simply means co-transport, the transport of two molecules in the same direction or in the same direction basically. Antipode means the transfer of two molecules in opposite direction. One molecule transferred inside the cell and second molecule transferred inside from inside to outside the cell. That is antipode. First one is your passive transport processes. Simple diffusion or passive diffusion. Simple diffusion is a concentration के बेसिस पे हमारी ड्रग वो मूव करती है. वो क्या करेगी? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगी. ठीक है. सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपोफिलिक ड्रग्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. ओनली दोज ड्रग्स दैट आर लिपिड soluble. Only those drugs transport across the cell membrane without any carrier or any protein. Okay. Or third point is the drugs that have molecular weight in between 100 to 400 Dalton. Only those drugs which have molecular weight between 100 to 400 Dalton, those drugs only cross the cell membrane. There is an exception for like peptides, cyclosporin A. It is a drug basically, cyclosporin. Cyclosporin is used for immunomodulator drug है, whose molecular weight is 1200 Dalton. But जे क्या करेगी, oral route, अगर हम oral route से दे रहे हैं, it will be better absorbed through oral route. Okay. Second one is your pore transport or bulk flow, or simply as you say filtration. Filtration means we separate the component from higher size to least size molecules. Those drugs that have higher simply as you say higher molecular weight drugs and lower molecular weight drugs simply separate करते हैं. Transport of molecules into the cell through protein channels. प्रोटीन चैनल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को सेल के इनसाइड ट्रांसपोर्ट करेंगे. जे इट इज ड्रिवन बाय हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मींस द फोर्स दैट इज जनरेटेड आफ्टर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल. दैट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. Transfer of water molecule from higher to lower concentration. It facilitates the solvent molecule to enter inside the cell. Okay. इसमें क्या है कि जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल में एंटर करेंगे हमारे वाटर की हेल्प से. तो वाटर अगर ट्रांसफर होगा तो वो क्या करेगा, एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करेगा. वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगी, हमारी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उनको ड्रैग करके इनसाइड द सेल ले आएगी. पोर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस यही है. जे उन ड्रग्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका मॉलिक्यूलर वेट इज इन बिटवीन 100 Dalton, and water soluble drugs. Only water soluble drugs can penetrate into the cell by pore transport. Okay. Third one is your ion pair. Ion pair transport basically if our drug present in ionic form, then it reversibly bind to a GI tract
molecules reversibly and penetrate the cell membrane inside the cell. After that, those complex disintegrate and the GI molecule return back to GI tract. Okay. It transport those drugs that ionize at all pH condition. ये उन्हीं ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करता है जो हमारी किसी भी pH कंडीशन पे आयनाइज हो जाती है. हमारे स्टमक में आप ले रहे हो, वो स्टमक में जाके आयनाइज हो रही है, इंटेस्टाइन में भी जाके आयनाइज हो रही है, तो वो क्या करेगी, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से एब्जॉर्ब होगी हमारी बॉडी में. इसके एग्जांपल है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स एंड प्रोपेनोलॉल. प्रोपेनोलॉल इज बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. It ionizes at all pH condition. Propanolol ionizes at all pH condition. That's why it transport through ion pair transporter. Next one is your facilitated or carrier mediated transport. Facilitated means with the help of something else. Transport of a drug from higher to lower concentration with the help of a carrier protein. कैरियर प्रोटीन की हेल्प से हमारी ड्रग है वो ट्रांसपोर्ट करेगी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन साइड को. ठीक है. इट इज ए फास्टर देन सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस. सिंपल डिफ्यूजन से फास्टर है क्योंकि उसमें क्या था, द ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी हेल्प. बट इन फैसिलिटेटेड इट इन्वॉल्व्स अ कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन क्या करता है कि बाइंड करेगा हमारे ड्रग के साथ और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा क्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है. ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ वाटर सॉल्युबल ड्रग्स या पुअरली एब्जॉर्ब ड्रग्स को के लिए यूज किए जाते हैं जो पुअरली एब्जॉर्ब हैं हमारी इंटेस्टाइन से या हमारे स्टमक से. इसके एग्जांपल है अमाइनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स, विटामिन्स. विटामिन्स हमारे सेल्स जो हमारे सेल है उसका प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं. इसीलिए फैसिलिटेटेड जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है वो क्या करेगा, विटामिन को कम्प्लेक्स बना लेगा विटामिन के साथ और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा क्रॉस द मेम्ब्रेन. ये फैसिलिटेटेड. देन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. एक्टिव इन्वॉल्व्स प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एज यूज यूनिपोर्टर. यूनिपोर्टर मींस ट्रांसफर ऑफ ए मॉलिक्यूल only to the one side if it is inside the cell or outside the cell in only one way. Okay, that is uniport. It is an energy dependent process. Basically it requires energy because the drug transport from lower concentration to higher concentration. इसमें उल्टा है. पहले क्या था कि सिंपल डिफ्यूजन में क्या था कि वहां पे क्या कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हमारी ड्रग जा रही है. बट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस द ड्रग ट्रेवल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. इट रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसके एग्जांपल है ग्लूकोज. ग्लूकोज बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को कि वो अपना नॉर्मल फंक्शन करते रहें. इसीलिए it involves two transport processes. First one is your ion transporter, second one is your ABC transporter. Ion transporter है ये क्या करेगा, it transfer only anionic and cationic drugs that carry negative charge or positive charge. उन ड्रग्स को ही ये ट्रांसपोर्ट करेगा. सेकंड वन इज योर ABC ट्रांसपोर्टर और सिंपली ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर. ATP जहाँ पे है एनर्जी. इन साइंटिफिक लैंग्वेज जो सेल्स यूज करते हैं ATP को ADP में कन्वर्ट करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. एंड आफ्टर दैट देयर इज ए जनरेशन ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट अ ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ओके. जे ABC ट्रांसपोर्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एंटी कैंसर ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कॉज करते हैं. जी क्या करेंगे, वो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उनको सेल के आउटसाइड ट्रांसपोर्ट कर देंगे, उनके एक्शन को ब्लॉक कर देंगे. जो हमारे सेल्स हैं जो अब नॉर्मल सेल्स हैं उनमें हमारी जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो एक्शन शो नहीं करेंगी. जे ABC ट्रांसपोर्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी कैंसर ड्रग रेजिस्टेंस. एंड सेकंड वन इज योर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट
it involves transfer of ions from one side to another side। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि एक आयन जो है वो क्या करेगा, एक साइड से दूसरी साइड तो जाएगा, बट दूसरे आयन की जो है ट्रांसपोर्ट है उसको भी फैसिलिटेट करेगा। इधर दो आयन से एक साइड को जाएंगे या ऑपोजिट साइड को जाएंगे, एक बाहर जाएगा एक आयन अंदर आएगा। सिंपली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यही है। इसमें है सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिंपोर्ट मीन्स both ions travels inside the cell, it is an energy dependent process। Second is your antipode, means one ion is moved inside the cell and one ion move outside the cell। Symport example is your sodium glucose sympator। सोडियम एक एनर्जी जनरेट करता है, अगर सोडियम इनसाइड आ रहा है बॉडी के, तो वो जो एनर्जी है वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है। ठीक है। सेकंड है H प्लस, द प्रोटॉन कपल्ड पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर। जी क्या करेंगे, जो हमारी पेप्टाइड लाइक ड्रग्स हैं, लाइक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। बीटा लैक्टम में आता है हमारा पेंसिलिन। पेंसिलिन एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, वो पेप्टी ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है सेल्स में। ठीक है। एंटीपोड के एग्जांपल है सोडियम प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर। ओके, दिस इज passive transport and active transport। Passive means, simple passive means the transport of an ion directly through the cell membrane। Directly, there is no need of carrier or some kind of pore। Okay, but in pore transport there is a pore present between the bilayer membrane। In facilitated diffusion, there is only those drugs penetrate through the pore that have molecular weight in between 100 to 400 Dalton, like glucose। Only glucose molecules penetrate these transport system। Okay, then active transport। Active transport, basically if one ion move outside the cell and one ion move inside the cell, it generates energy ATP to ADP। ठीक है। जो ये एनर्जी जनरेट हो रही है ये फैसिलिटेट करती है इन आयंस को मूव करने में, आइदर आउटसाइड द सेल जा रहे हैं या इनसाइड द सेल आ रहे हैं। ठीक है, ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन नेक्स्ट इज योर पैरासेलुलर और इंटरसेलुलर। पैरासेलुलर मींस between the tight junction that is present between the tight two cells, the junction present between the two cells, the drug move through that junction। उस जंक्शन से हमारी जो ड्रग है वो आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल आएगी। ओके, बेसिकली यही है। इसमें दो होता है, फर्स्ट इज योर परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन के थ्रू परमिएट करना। दूसरा परजॉर्प्शन। परजॉर्प्शन मींस देयर इज एन टेम्पररी ओपनिंग जनरेट होती है। जो टेम्पररी ओपनिंग सेल्स क्या करते हैं कि टेम्पररी ओपनिंग एक जनरेट करते हैं जिसके थ्रू हमारी जो ड्रग है वो आउटसाइड से इनसाइड आएगी ऑर्गन के। ओके, ये होता है परजॉर्प्शन। बट परमिएशन, ये फर्स्ट पॉइंट है, उसमें क्या होता है कि ये टाइट जंक्शन है उनमें ओपनिंग नहीं होती। ड्रग जिनका साइज उस पोर के साइज के इक्वल होता है वही ड्रग उसको पेनिट्रेट करती है, अदरवाइज और कोई ड्रग पेनिट्रेट नहीं करती उस पोर को। ये स्ट्रक्चर है, इसमें बताया कि ट्रांससेलुलर प्रोसेसेस क्या होती हैं और पैरासेलुलर प्रोसेसेस क्या होती हैं। ठीक है। थर्ड वन इज योर वेस्कुलर। वेस्कुलर मींस like this is our cell membrane। इसमें क्या होता है कि there is a drug that attaches to a surface of a cell membrane। अटैच करेगी सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे, और क्या जो मेम्ब्रेन होगी वो एक वेसिकल फॉर्म कर देगी, लाइक पाउच की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जो हमारी ड्रग है इस जगह पे जाके एंट्रैप हो जाएगी, और बाद में क्या होगा कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो एक वेसिकल फॉर्म कर देगी राउंड शेप में, जिसमें हमारी क्या है ड्रग प्रेजेंट है, वो आउटसाइड से इनसाइड आएगी।
with the help of vesicle. That's why it is called vascular transport processes. It involves two types. First one is your pinocytosis, second one is your phagocytosis. Pinocytosis means drinking, phagocytosis means eating. ये टर्म याद रख लेना. पिनोसाइटोसिस मीन्स होता है ड्रिंक, फ्लूइड को ड्रिंक करना, वही फ्लूइड है. जो फैगोसाइटोसिस है मीन्स ईट करना, किसी सॉलिड पार्टिकल को ईट कर रहे हैं हम, वो होता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस. पिनोसाइटोसिस इज यूजुअली यूज्ड फॉर वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट पार्टिकल्स. जितने हमारे स्मॉल सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके लिए हम यूज करते हैं पिनोसाइटोसिस प्रोसेस. एंड फैगोसाइटोसिस प्रोसेस इज लाइक कोई सेल डैमेज प्रेजेंट है, लाइक सेल का कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, ऑर्गन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, वो डैमेज हो गया, गोल्गी एपरेटस डैमेज हो गया, वो क्या करेगा फैगोसाइटोसिस की फॉर्म में एक वेसिकल फॉर्म होगा. वेसिकल क्या करेगा, वो जो सेल का इनसाइड है उससे आउटसाइड जाएगा, सेल के बाहर जाएगा, इनसाइड से आउटसाइड, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस. ओके. देन ये एक इक्वेशन है हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन, इसको मार्क कर लो. ये मैं आपको क्लास में ही करवाऊंगा, अगर ऑफलाइन क्लासेस लगी तो उसे में आपको ये बेटर समझ में आएंगी. हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन. ओके.